Hello everyone, this is your educator Aisha Rashid and you are watching 7 Minute Tricks. In this video, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं the most important idioms and phrases. If you are ready, give me thumbs up by hitting the like button. Yes ma'am, we are ready. और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 idioms and phrases जो कि बहुत ज़्यादा important है in just 7 minutes. So let's begin with. पहला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है spill the beans. What is the meaning of spill the beans? इसका मतलब होता है टू टेल पीपल अबाउट समवन सीक्रेट. किसी के सीक्रेट को क्या कर देना, बता देना. टू टेल अबाउट समवन सीक्रेट, टू टेल पीपल अबाउट समवन सीक्रेट इज सो कॉल्ड एज स्पिल द बीन्स. नेक्स्ट इज टू फील ब्लू. टू फील ब्लू का मतलब होता है वेरी सैड, वेरी सैड. बहुत ज्यादा जब अफसोस में होते हैं वहां पर बोलते हैं टू फील वेरी सैड, यानी टू फील वेरी ब्लू. No strings attached. What is the meaning of no string attached? It means एक ऐसा agreement जिसमें कोई भी conditions ना हो. एक ऐसा agreement without conditions. No strings attached means an agreement without conditions. A bird in the hand is worth two in the bush. यानी कि something is better than nothing. कुछ नहीं से अच्छा है कुछ होना. तो a bird in the hand is worth two in the bush. Something is better than nothing. Option number A. A doubting Thomas, इसका मतलब होता है skeptical person. Habitually doubtful person, a person who refuses to believe anything until they are given proof. उसे क्या बोलते हैं? A doubting Thomas. Pass the buck. It means to pass the blame. Pass the buck, it means to pass the blame. Blame मतलब इल्जाम. Put a brave face. Put a brave face. To act confidently in a difficult situation. To act कैसे? एकदम बेहतरीन तरीके से confidently act करना किसी भी difficult situation में. To act confidently in a difficult situation. Option number C will be the correct answer for this question. A Hobson choice. What is the meaning of a Hobson choice? It means अब तुम्हारे पास कोई और choice नहीं रह गई है. The only choice. Hobson choice, the only choice. To lose ground to somebody or something, it means to lose a sustained shared position. Next. For each of the following sentences, 4 alternatives are given. You are required to choose the correct meaning of the idiom or phrase given underlined in the sentence. अब यहाँ पर एक ये लिखा हुआ, तुमको बताना है इसका मीनिंग क्या होना चाहिए. Dowry is a burning question of the day. Dying issue, relevant, irrelevant या widely debated issue. The dowry is a widely debated, जिसके बारे में सब लोग बात करें. Burning question, जिसके बारे में सब लोग क्या कर रहे हो, ऐसा मुद्दा जिसके बारे में सब डिस्कस कर रहे हो, that is so called as burning question. So here it will be dowry is a burning question, यानी कि is a widely debated issue of the day. Next come his voice gets on my nerve. इसका मतलब होता है his voice gets irritates me. उसकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा irritate करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है. So makes me sad, makes me ill, pierces my eardrums. Pierce का मतलब होता है जैसे तुम्हारे कान छिदे हुए मान लो, राइट? तो उसे बोलते हैं pierced. ओके, तो his voice gets on my nerve का मतलब होता है irritates me. Next is the doctor says that the patient has turn the corner. What is the meaning of turn the corner? इसका मतलब होता है pass the crisis. Turn the corner यानी pass the crisis. The doctor says that the patient has died नहीं, become worse नहीं, completely वो ठीक हो गया. No, the doctor says that the patient has turned the corner. Kanika was left high and dry by her friends when she lost all her money. हाई एंड ड्राई का मतलब होता है शी वॉज अबेंडेंड. उसको लोगों ने क्या कर दिया, उसके फ्रेंड्स ने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया. कनिका वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई. कनिका वॉज लेफ्ट अबेंडेंड बाय हर फ्रेंड्स व्हेन शी लॉस्ट ऑल हर मनी. अबेंडेंड विल बी द करेक्ट वर्ड टू बी यूज्ड हियर. सो अबेंडेंड में उसके फ्रेंड्स ने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया. अच्छा, नेक्स्ट कम्स 14 तक की हम लोगों ने कर लिया. 15th इज लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 11th आवर.
लास्ट मौके पर। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मौके पर वो सो के जागते हैं, स्पेशली जब फॉर्म भरने की बारी आती है तो सोचते हैं लास्ट मौके पर। 11th आवर का मतलब होता है एकदम लास्ट मौके पर आप जब काम करते हो, उसे बोलते हैं 11th आवर। Okay, so if you are looking for subscription on Unacademy, first of all what you have to do, you have to download the Unacademy learning app। Unacademy learning app को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद सबसे पहला काम ये है आपका, वहां पर मेरे नाम से फॉलो कर लेना, क्योंकि अगर आप एसएससी, एनडीए, सीटीएस या बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आप सब लोग वहां पर हमको देख सकते हो। 11 PM पर कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व होता है डेली। 9:45 PM पर एसएससी, सीटीएस, एनडीए वाली क्लास होती है डेली, सो यू कैन ज्वाइन। और इफ यू आर लुकिंग फॉर सब्सक्रिप्शन तो पहला काम होगा चूज योर गोल, दूसरा काम होगा आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सेलेक्ट कर लेना। स्टेप 3 होगा 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स, किस मंथ की तैयारी कर रहे हो, कितने मंथ्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए है। मान लो 12 मंथ्स का चाहिए तो तुम 12 मंथ्स का 6000 का है, तो क्या मैम कोई डिस्काउंट मिल जाएगा? या इफ़ यू अप्लाई दिस रेफरल कोड तुम्हें 10% का ऑफ मिल जाएगा। ये फीस 31 दिसंबर 2020 से बढ़ने वाली है। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सब्सक्रिप्शन, दिस इज द बेस्ट टाइम टू अवेल। राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। ऑफ 5 PM पर डेली क्लास होती है वाईफाई स्टडी पर। मेक श्योर दैट यू ऑल हैव टू शो योर प्रेजेंस देयर। वाईफाई स्टडी जो कि इंडिया का नंबर 1 स्टडी चैनल है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप सो कि आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। एंड सबसे अच्छा कौन सा लगा है, राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को कौन सी वीडियो चाहिए है, डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट टाइम कौन सी वीडियो किस टॉपिक पर आप लोगों को चाहिए। डेफिनेटली आई विल ब्रिंग इट। So this was all about today's session. Thank you everybody. Have a nice day ahead.